ए के यादव सर, एडीजी विकर सेक्शन बिहार को श्री नरेंद्र कुमार बुके देकर सम्मानित करेंगे। और अर्चना मैडम, श्री नरेंद्र कुमार ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन के बिहार के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं। और मैडम JNU सॉल देकर सम्मानित, मैडम अर्चना कुमारी JNU से हैं, डॉक्टर अर्चना कुमारी। Honorable Mr. Justice Sandeep Kumar Saab, special guest, Honorable Mr. Justice Retired P. Chandu Saab, special guest, Mohtरमा Arfa Khanam Sherwani Sahiba, Sister Padam Shri Dr. Sudha Varghese, मेरे सीनियर और मेरे बड़े भाई के जैसा स्नेह देने वाले हमारे एडीजी अमरेंद्र कुमार अम्बेडकर सर, सुनील गौतम जी, फादर पीटर जी, अजीत जी, अनिल जी, मंचा सिंह, फेडरेशन के ऑफिसर्स और उपस्थित देवियों सज्जनों, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ऑनरेबल जस्टिस के चंदू सर की परमिशन चाहूँगा कि मैं साथ में हिंदी भी, जिससे ऑडियंस बहुत सारे हिंदी में बेहतर समझ पाएंगे, तो अगर परमिशन हो तो। Okay. I would like to start with Constitution related. A great body, a commission was constituted under the government of late Mr. Atal Bihari Vajpayee. Retired Chief Justice of India, Honorable Justice M.L. Venkat Shilaiya was chairman. 31 मार्च 2002 को उन्होंने बहुत विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की थी, ह्यूज रिपोर्ट, and gist of that, synopsis of that report is available in printed form also in a single volume, and I thought it appropriate that on Constitution Day we may like to look at that report and introspect, discuss and try to find way forward regarding whether those words are still relevant or lesser relevant or even relevant up to greater extent, and how to go about it. This is a matter of discussion. This has to be a matter of a great debate, long-term debate for generations, because this is the basic constitutional right of every citizen of a free democracy. I am grateful that Ajit ji started that debate, speaking heart out in that manner, call a spade a spade. So I would like to quote
certain part of that report which is most pertinent to convey essential of that huge report in very few paragraphs. In that report, in a paragraph as heading 50 years of working of Constitution, achievements and failures, a balance sheet. पैराग्राफ नंबर 2.26 वॉल्यूम 1 का था। इसका पहला एक मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगा उसी से क्या पाया था उन्होंने कमीशन में, और हम गौर करेंगे कि आज भी वो कितना रेलिवेंट है। कुछ लोग हीरो वर्शिप के चलते या अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के चलते उसमें बहस खड़ा कर सकते हैं कि इतना रेलिवेंट आज है या नहीं है। 50 साल में उस समय क्या हुआ था, फिर 70 साल में क्या हुआ, आज क्या हुआ, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम सभी सिटीजन्स के रूप में इकट्ठे हुए हैं और हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने क्या कहा, और ये सब्जेक्टिव हो सकता है अपना अपना कि किस हद तक आज इसकी रेलिवेंस है। उन्होंने कहा था, फ्रेटर्निटी, the noble ideal of brotherhood of man enshrined in the preamble of the Constitution, has remained unrealized. The people of India are more divided amongst themselves than at the time of the country's independence. There is increasing criminalization and exploitation of the political climate and processes, and an increasing criminals, politicians, bureaucratic nexus. Another point, there is crisis of confidence. There is crisis of leadership. Political leaders, owing to narrow partisan and sectarian interests and desire for short-term political gains, are unable even to agree upon broad common national purposes. Another, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या कह रही है। करप्शन, insensitivity and inefficiency of administration have resulted in extra legal systems and parallel economies and even parallel governments. Bureaucratic corruption and petty forgeries which cause frustration in people in their daily lives has more serious fallout of pushing more and more people into extra legal systems. The pervasive cynicism that maladministration generates results in a lack of faith in and disenchantment with institutions of democracy. Another point, there is an increasing non-accountability. Corruption has been pervasive, public interest has suffered. Another point, constitutional protection for the services under Article 311 has largely been exploited by dishonest officials to protect themselves from the consequences of their wrongdoings. Another part from the report, para 2.26.9, administration of justice. Honorable न्यायमूर्ति द्वय बैठे हैं यहाँ मंच पर, और हम सभी आज देश के नागरिक की हैसियत से हम दिल खोलकर बात कर रहे हैं, जैसा अजीत जी ने बताया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में क्या कहना था कमीशन का। Judicial system has not been able to meet even the modest expectations of the society. Its delays and costs are frustrating. Its process is slow and uncertain. People are forced to seek recourse to extralegal methods for relief. Trial system both on the civil and criminal side has utterly broken down. आगे उन्होंने समअप किया था, on an overall assessment there are more failures than success stories, making the inference inescapable that the 50 years of the working of the Constitution is substantially a saga of missed opportunities. आगे कमीशन ने
क्योंकि हम लोग जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं पुलिस के रूप में, और यहाँ जो हम लोग बैठे हैं उनमें जुडिशियल ऑफिसर हैं, साथ ही हमारी संविधान के कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हायर जुडिशरी के ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ हैं। चीफ गेस्ट के रूप में ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के जज मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार सर हैं। तो मुझे लगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या जस्टिस सिस्टम का जो ये था, इसे भी कोट करना ये उचित होगा। सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द कंट्री इज अनदर एरिया ऑफ कंसर्न। Criminal justice system is on the verge of collapse. The quality of investigations and of prosecutions requires a strong second look. Loss, delay, and cost of litigation have become proverbial. Victimology, victim protection, protection of witnesses in sensitive criminal trials need institutional arrangements. Recruitment, training, refresher, and continuous legal education for lawyers, judges, and judicial administrators need immediate attention. So, ये 4 पार्ट उसी रिपोर्ट के सिनॉप्सिस में से मैंने कोट किए हैं। क्या स्थिति है? सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि ये 31 मार्च 2002 से इन पौने 20 साल में 2 दशक पूरे हो जाएंगे 31 मार्च नेक्स्ट ईयर को। हम बेहतरी की तरफ बढ़े हैं या बदतरी की तरफ, तो ये इसमें सब्जेक्टिव ये हो सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग पर जो इतने बड़े विद्वान लोगों का जो कमीशन था, उसके चेयरमैन थे, उनकी रिपोर्ट है। आगे उन्होंने उसी डिस्कशन के क्रम में आगे कोट किया है सोशलिस्ट लीडर मधुलिमा साहब का, ये उसे भी मैं पढ़ देना उसे समझता हूं आगे अपनी बात कहने से पहले। The process of cleansing public life and strengthening democracy is a difficult and painful process. It has to be accompanied by democratization of parties. There is no easy way out, no instant solution awaiting implementation through a suitable statute. इसके साथ मैं अपनी बात, क्योंकि मुझे प्रिविलेज है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जन्म लेने का, पिछड़े इलाके में, पिछड़े रूरल एरिया में, वहां के समाज को बचपन से जीने का, जिसको हिंदी में कहते हैं भोगा हुआ यथार्थ। फिर 1996 से बैच का 1998 से यहाँ फील्ड में मेरी बिहार में पोस्टिंग शुरू हुई, और तब से अब तक 2021 खत्म होने को है। 25 साल सर्विस में हमने पूरे किए हमारे बैच ने। जो एक और राज्य है जहां समाज की शोषण के विभिन्न पैटर्न और कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, यूपी में जन्म लेना, 26 साल तक वहां बड़ा होना, और उसके बाद बची हुई जिंदगी के 25 साल बिहार में पुलिस ऑफिसर के रूप में जो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, जो जहां हम देख सकते थे, समझ सकते थे। अगर हम संवेदनशील रहें तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं पुलिस का जॉब, लॉयर्स का जॉब, जुडिशरी के जॉब ऐसे हैं जहां सबसे करीबी से हमें चीज़ों को देखने समझने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर मैं आगे कुछ कहना चाहूंगा। वो ये है कि जब भी इन चीजों पे बात होती है, whenever these debates are launched, our weakness of not being able to declass ourselves before participating in such a great debate, such a debate of such a great importance, that is the biggest hurdle. When we start some serious debate, we most of the time, most of us fail to get out of our own identity. और जब हम बात होती है
चाहे करप्शन की, चाहे चीजों की, चाहे फेलियर की, तो हम अपने को या अपने विभाग को, अपनी चीजों को बचाना शुरू कर देते हैं। और इस चीज से मुझे अफसोस है, इतना बड़ा कमीशन ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.एन. वेंकटचरैया साहब की चेयरमैनशिप वाला कमीशन भी इस चीज से एक हद तक शायद नहीं बच सका। जहां वो जुडिशरी की बात डिस्कस कर रहे थे, वहां उन्होंने पॉलिटिकल यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सब की करप्शन और रॉटन स्टेट्स की बात जरूर की थी, लेकिन जुडिशरी पे जब वो बात कर रहे थे तो बीइंग ए जज मोस्ट प्रोबेबली परहैप्स वो वहां जुडिशरी में जो करप्शन है उसके बारे में वो कुछ कहना भूल गए थे। ये चीज ऐसी है जो हमको आगे बढ़ने से रोकती है एक नेशन के रूप में। कोई इंडिविजुअल चीज की बात नहीं है, कोई इंडिविजुअल एलिगेशंस कहीं किसी पर नहीं लगाए जाते हैं, कोई फिंगर पॉइंटिंग का बात नहीं है। यहाँ जब बात होती है नेशन बिल्डिंग की, वो चीजों को सुधारने की, यहाँ जब बात होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग कैसी रही है पिछले 50 सालों में, तो वहां हमें ईमानदारी से बात करनी होती है। ये चीज हमने अपने साथ भोगी, हमने देखा कि किस तरह से आगे आती है। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की, तो हम पुलिस ऑफिसर के रूप में, आईपीएस ऑफिसर के रूप में पहले सोचने लगते हैं एक शहरी, एक इंसान, एक सिटीजन इस देश की बात में सोचते हैं। इसका मैं खुद भोगी रहा हूं। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ ग्रेट अभूतपूर्व, दे यूज्ड टू से दिस वाज हिस्टोरिकल। In year 2005, under the leadership of the then Prime Minister Mr. Manmohan Singh, there was a conference finally assembled in Vigyan Bhavan of superintendents of police, young SPs, young superintendents of police, actually at that time working in the field in whole of the country. I was young SP then, 2005. I was SP in a district, so I also got an opportunity to participate in that thing. Finally, विज्ञान भवन में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर होम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन होना था, हुआ भी। उससे पहले वर्कशॉप आयोजित किए गए थे, 4 जोन में देश को बांटा गया। नॉर्दर्न जोन में हम लोग आते हैं, श्रीनगर में हुआ वर्कशॉप। उसमें जिस सिंडिकेट का मैं मेंबर था, उसका यही था कि सब क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ज्यादा इफेक्टिव हो पाए, ज्यादा एफिशिएंट हो पाए, इसके लिए हम लोग कटिंग एज लेवल पे प्रैक्टिशनर के रूप में, पुलिस ऑफिसर के रूप में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों ने क्या समझ विकसित की है, उसके बारे में बात करें। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट सिंडिकेट which was going to propose certain amendments in existing criminal justice delivery system, mainly criminal major acts, Indian Evidence Act, Indian Penal Code, and Criminal Procedure Code. First thing, and this is not surprising for most of us, police officers, first thing they were pressing my colleagues that we should recommend that this section 25 of Indian Evidence Act should be amended immediately. What is section 25? Section 25 Indian Evidence Act का ये कहता है कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन, पुलिस के सामने जुर्म इकबाल किया गया को प्रूव नहीं किया जाएगा, यानी उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं। ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी जो कन्फेशन होगा उसी पे आगे आप कन्विक्ट कर सकते हैं, आगे चीजें कर सकते हैं। वेरी सिंपल प्रोविजन। पुलिस ऑफिसर्स का कहना था कि इसको हटाया जाए, पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन को प्रूव किया जाए, एडमिसिबल बनाया जाए, एक्सेप्ट फॉर मी। Every IPS officer, every superintendent of police, colleague of mine was in favor of this amendment, and I was strongly opposing it. I was asserting
That problem is not this कि पुलिस के पास पावर कम है, या फॉर दैट मैटर किसी भी एक एजेंसी बैठ के बात कर रहे हो तो वो सोच सकते हैं कि यार जुडिशरी की पावर और ज्यादा होती तो और अच्छा शायद हम डिलीवर कर पाते। पुलिस वाले भी ऐसे ही सोचते हैं 25 वहां क्यों जाए हमारे सामने। मैंने कहा कि हमको आपको पता है यहाँ आइवरी टावर्स में बैठ के हम बात कर रहे हैं, हमको आपको पता है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स कितना मिसयूज करते हैं अभी 25 के रहते हुए भी। कुछ एविडेंस जब भी नहीं रहती है विभिन्न तरीकों से हम एलिसिट करते हैं उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट सो कॉल्ड और उसके आधार पर भी चार्जशीट करते हैं। बहुत होता है, कुछ भी करते हैं, इतना अन्याय अत्याचार करते हैं, हमने कुछ सोचा है। तो मेरे दोस्तों के पास इसका इलाज था, बोला वी विल प्रपोज that this confessional statement will not be admissible until unless this is recorded before, not below the rank of deputy superintendent of police officer. I argued that tell me, my dear friends, what is the scientific basis on which we tend to presume that Gazetted officers, IPS officers, or for that matter, DGP police, or for that matter, Prime Minister of India, is above those weaknesses, due to which weaknesses a sub-inspector or assistant sub-inspector may misuse those provisions. And I am sure, not only my dear friends, dear colleagues over there, having any answer to this thing, nobody does till now in our nation. What is scientific basis? गरीब चोर होता है, अमीर आदमी तो शरीफ होता है। हीरा चोर और हीरा चोर का जो प्रोवर्बियल जो चीज है वो चीज कैसे हम मान लें कि दरोगा तो मेरा चोर है और मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे सामने जो रिकॉल करेगा वो तो एडमिसिबल होना चाहिए। हमने कहा साहब ये अनसाइंटिफिक तरीके से इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है ही तो कानून में तो प्रावधान है। There are already provisions are there. Take that guy to judicial magistrate in certain circumstances, even before executive magistrate. Let them record his or her statement. Why police? पुलिस के सामने इतनी बेताबी क्यों पुलिस के सामने अगर सब कुछ तुम्हारा फेयर है? This anecdote I was narrating because this is very difficult to declass ourselves. This we cannot do until unless we have got great feeling for the victims and downtrodden and really weaker persons in the situations. So this tendency, I am really, I found it a bit of amusing also that such a great commission also could not lay hand on that thing also. 3 state organs are there: constitutional organs, legislature, executive and judiciary, and nobody can say with great confidence, keeping his or her hand on heart, that some particular institution is more holier, more pious, more holy than others. I don't think so. And then what is the way out? Where to go? Obviously, अजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोर्ट की तरफ हम जाएंगे, कोर्ट से मांगेंगे इंसाफ। ठीक उसी तरह से जैसे कहीं कुछ होता है तो लोग थाना की तरफ भी जाना चाहते हैं। This is the system. So there is no blame game.
how to go ahead, what is way forward. So my humble submission is there. Something I have tried to analyze what I may claim in a scientific manner. Based upon that, there is certain submission from my side, which that great opportunity, though they failed to take notice of my submission, they simply bulldozed me. They did not record my statement, my version, to be placed before the top executive person of this great nation. They failed. They simply didn't bother about my submission that time. I told them, let us record my, even one person is dissenting, that dissent should be recorded, no? If our system is transparent enough, then my statement should have been recorded that I don't agree with this recommendation of amending this section 25 of Indian Evidence or anything like that. And I told them, moderators intervened. One moderator was retired EG rank officer and he had been till that time or after a couple of years was appointed governor of a state also. And another moderator was the then director of National Police Academy, Hyderabad. Both very senior IPS officers, one retired and one serving. They simply bulldozed my thing, okay, कौन मानेगा क्या करेगा. Point is not that कि कौन मानेगा. जब आप कह रहे हैं कि हिस्टोरिकल मोमेंट है, एसपी के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो कोई एक एसपी कह रहा है तो उसकी बात लिखी जानी. And what happened? Interesting. This can be a case study or a general representative thing of thought process, how things work here in our society. What happened? Before Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister, the presentation, my batchmate of Maharashtra, Nikhil Jayaprakash Gupta, handsome guy, beautiful English, beautiful diction, he was chosen to present that recommendation from on behalf of SPs before Prime Minister. He said, recommendation number 1 was this, Section 25 amendment. So this is the way how we think, and interestingly, without knowing its implication nitty-gritties, the then Honorable Union Home Minister Shivraj Patil Sahab clapping, इससे होगा. तो बाद में कुछ इस तरह के कानून बनते भी रहे हैं, टाटा बना फिर हटा और बहुत तरह की चीजें जिनमें कन्फेशनल स्टेटमेंट हमारे सामने लिया गया वो था. सिंपल चीज है कि हमें अपने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा अकाउंटेबल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा. और जब बहस हो रही होगी जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, ज्यूरिस्ट, जजेस शामिल होंगे, मीडिया के लोग, ये तीन तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, चौथा जो पिलर है मीडिया है, जिसके जो ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हमारे गेस्ट स्पीकर के रूप में, स्पेशल गेस्ट के रूप में मोहतरमा रिप्रेजेंट कर रही हैं. बाकी तो जो है वो देख ही रहे हैं, जैसे इन्होंने कमीशन ने दर्ज किया है. और चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो 3 पिलर है नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई कमेंट उनको जरूरत नहीं लगी. नहीं तो जैसा हमारे बारे में कमेंट है ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर के बारे में, वैसे ही कमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया की भी हालत हुई है. ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर एक हमें जस्टिस डिलीवरी सिस्टम तैयार करना होगा. क्योंकि वैल्यू इनकल्केशन धर्म और धार्मिक ये रिलीजियस प्रीचेस और इन सब से नारों से, ड्रामों से, इवेंट मैनेजमेंट से नहीं आता. वैल्यू इनकल्केशन आता है
जो आज की मॉडर्न स्टेट में उसकी जिम्मेवारी है स्टेट की, और जीरो इन करते हैं तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की, जो स्याह को स्याह और सफेद को सफेद फैलाता है। Black is black, white is white, and this is grey, this is this. जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के सुधार के लिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए मोस्ट अर्जेंट बहस इस देश में किसी भी चीज से पहले चलना जरूरी होगी, जिसका सीधा मोटो होगा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी जैसा अंग्रेज का बनाया कॉलोनियल आइवरी टावर से जो हम जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, थानेदार साहब, पुलिस वाले, फलाना जज साहब, कहीं अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं आता है, नीचे तक किसी तरह कोई आता है, एक दो पे कार्रवाई होती है, फिर भी उसका भी क्या होता है वही जानते हैं, जिसमें 311 आर्टिकल का कमेंट खुद कमीशन ने किया हुआ कि कैसे होता है, एंड रिजल्ट क्या होता है। नारेबाजी होती है, बहुत तरह की चीजें होती हैं, जाति, धर्म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो लोग फाइनेंशियली भी बेईमान नहीं है वो भी ईमानदार साहब हैं, लेकिन वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे पिघल जाते हैं। वो कहां से कहां अन्याय करके चल देते हैं और उनको लगता है कि हम तो बड़े ईमानदार। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। मेरा यहाँ बहुत दिल से जो मेरा कन्विक्शन है 2005 से लेकर आज 2021 16 साल बाद भी उतना ही है और मजबूत हुआ है, वो ये है कि इस देश में किसी भी बहस से ज्यादा जरूरी एक बहस है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें जो इनके बनाने वालों ने जो सोचा था उसको आगे जमीन पर उतारते जाना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को ज्यादा खूबसूरत माहौल देना है, तो उसके लिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज द मोस्ट अर्जेंट। जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म डजंट मीन कि जुडिशरी और पुलिस ओनली और दिस एंड दैट, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चंद कोड, सब्सटेंटिव लॉ पीनल प्रोविजन वाले नहीं, वो कोड और कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो उसकी प्रोसेस को तय करता है, जिसमें लूप होल और मैनिपुलेशन की गुंजाइश कम होती चली जाती है, उसी हद तक वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, ज्यादा अकाउंटेबल होगा। तो मैं आई विल रिक्वेस्ट दिस ऑगस्ट गैदरिंग दैट जब तक डिबेट नहीं होगी मसले हल नहीं होते हैं, डिबेट हो, यही हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच का असली मतलब है। और डिबेट हो सबसे अर्जेंट मेरे हिसाब से वो इशू है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुधारने के लिए, ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा अकाउंटेबल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।